angiospermic plant, we know the structure of primary taproot, which consisting on 4 different regions. The most important region for absorption of water is region of maturation, in which millions of root hairs are present. These root hair increases the surface area of the root and also increase the capacity for absorption of the water. All we know that root hairs are the thin-walled, slender extension of the epidermal cell, and this root hair absorbs the water, or water enters in the root hair by the process of diffusion. Later on, this water enter up to the deepest part, that is central most part of the root, by different pathway. There are 2 types of pathway in water absorption: apoplast pathway and symplast pathway. So in this video lecture, we are dealing with these 2 type of pathway in more detail, and later on we are also learning about the transport in plant in vertically upward direction, that is translocation of water, which is also called as ascent of sap. So first of all, absorption of water. Let us consider this is the structure of primary taproot, and this is the elaborated structure of the root hair. Okay. These are the water molecules which are present in the soil, and all we know that only capillary type of water can be absorbed by the root hair. This water enters in the root hair by the process of diffusion, and slowly water enters up to the centralmost part. In this centralmost part, xylem tube is present, that is xylem vessel, and xylem vessel conducts the water in vertically upward direction. So movement of water from soil up to the xylem vessel is called as absorption. Let us revise what is absorption and what is the limited pathway for absorption. Movement of water from soil up to the xylem vessel. Xylem vessel is situated exactly at the center of the root. तो ये जो डिस्टेंस है सॉइल से xylem वेसल तक का, इस डिस्टेंस को जब वाटर ट्रेवल करेगा तो वाटर के इस ट्रेवलिंग को कहेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर. Now absorption of water is taking place by 2 different pathway. The first is symplast and another is apoplast. Let us look with this symplast and apoplast with diagram TS of root. TS means transverse section of root. अभी रूट में 4 अलग अलग रीजन्स हैं, तो हम लोग उस रीजन का TS लेंगे जहां से वाटर एब्जॉर्ब होता है, दैट इज रीजन ऑफ मैच्योरेशन. ओके. नाउ इन द माइक्रोस्कोप दिस TS looks like somewhat this. This is outermost single layer of compactly arranged cells, and this layer is known as epidermis, that is outermost layer. Okay. Secondly, just below the epidermis, some spherical, loosely arranged parenchyma cells are present, and these parenchyma cells constitute the cortical region. Okay, this is supposed to be cortical region. Cells are loosely arranged. अभी देखिए, सेल्स अगर लूजली अरेंज होते हैं तो सेल्स के दरमियान गैप ज्यादा होता है. ये जो गैप है सेल के दरमियान वाला, इस गैप को कहते हैं इंटर सेल्यूलर स्पेस. इंटरसेल्यूलर INTER इंटर, यानी 2 सेल्स के दरमियान जो गैप होता है उस गैप को इंटरसेल्यूलर स्पेस कहते हैं.
और सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है इसे इंट्रा सेल्यूलर नाम दिया जाएगा। तो दो टर्म है स्टूडेंट्स हमारे पास, इंटरसेल्यूलर और इंट्रासेल्यूलर। सेल्स के बीच में खाली गैप इंटरसेल्यूलर कहलाएगा और सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है वो इंट्रासेल्यूलर कहलाएगा। अभी कॉर्टेक्स कंप्लीट नहीं हुआ है, कॉर्टेक्स की एक इनरमोस्ट लेयर बाकी है। दिस इज इनरमोस्ट लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स एंड दिस लेयर हैविंग rectangular compactly arranged cells, this layer is called as endodermis. Okay, so endodermis is a part of cortex. You can say that endodermis is innermost layer of the cortex. endodermis क्या होती है? cortex का innermost layer होती है। okay? फिर यहाँ पे कुछ पेरिसाइकल सेल्स आएंगे और पेरिसाइकल सेल्स के दरमियान फ्लोएम्स आएंगे और फ्लोएम के बाद में यहां पर रहेगा जाइलेम। ये प्रोटोजाइलेम और लार्जर जाइलेम इज कॉल्ड एज मेटाजाइलेम। ओके, तो आप सिर्फ जाइलेम भी सपोज करें तो चलेगा। यहां पे मैं नोट कर लेता हूं, दिस सेल इज जाइलेम। ओके, नाउ हाउ वाटर इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द सॉइल। सम ऑफ द एपिडर्मल सेल अंडरगो एक्सटेंशन and this extended part of the epidermal cell is called as what? Root hair, which is thin walled extension of epidermal cell. Now let us consider the water molecules which are present in the soil compose the capillary type of water. मैं इसको कुछ अलग कलर से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता हूं। आप लोग देखिए, इसको पिंक कलर से हम रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए, वाटर मॉलिक्यूल सॉइल से पहले इंटर होते हैं रूट हेयर में। इतने प्रोसेस को कहा जाएगा डिफ्यूजन। एकदम क्रिस्टल कट कंसेप्ट आप लोग क्लियर कर लें। जैसा मैं एक्सप्लेन करता हूं आप भी उसको रिवाइज करें और अगर हो सके तो रजिस्टर पर लिखकर इसकी नोट्स तैयार करें ताकि एकदम परफेक्ट आपको याद हो जाए। सॉइल टू रूट हेयर वाटर इंटर्स बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। तो इतनी प्रोसेस को क्या नाम दिया हम लोगों ने? डिफ्यूजन। और याद रखिए कि डिफ्यूजन इज अ टाइप ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट में होता क्या है कि मॉलिक्यूल्स, यहां पे मॉलिक्यूल्स कौन से हैं? वाटर मॉलिक्यूल्स। पैसिव ट्रांसपोर्ट यानी डिफ्यूजन में मॉलिक्यूल्स अपने हाई कॉन्सेंट्रेशन से माइग्रेट कर जाते हैं लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। मतलब यह हुआ कि रूट हेयर के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स की क्वांटिटी बहुत ही ज्यादा कम होती है, सॉइल में वाटर मॉलिक्यूल्स की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है। तो हाई कॉन्सेंट्रेशन सॉइल में है वाटर का, और वाटर का लो कॉन्सेंट्रेशन रूट हेयर के साइटोप्लाज्म में है, रूट हेयर के अंदर है। तो वाटर विल फॉलो द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बाय द पैसिव प्रोसेस एंड डिफ्यूजन water is moving from soil into the root hair cell. The process is called as diffusion. तो आप शॉर्टकट में यहां पे डिफ्यूजन लिख सकते हैं। नाउ वाटर इंटर्स इन द इंटरसेल्यूलर स्पेसेस। जरा ध्यान से देखिए, इसको मैं व्हाइट कलर की पेन से रिप्रेजेंट करता हूं। रूट हेयर से यानी एपिडर्मल सेल से वाटर कहां पर आ गया? इंटरसेल्यूलर स्पेस में। नाउ दिस वाटर फ्रॉम इंटरसेल्यूलर स्पेस कंटिन्यूअसली मूविंग। देखिए वाटर की पाथवे जो एरोज में ड्रॉ कर रहा हूं, ये एरो स्ट्रिक्टली सेल के अंदर नहीं जा रहा है। ये वाटर मॉलिक्यूल सेल के साइटोप्लाज्म में कभी भी नहीं जाएंगे। वाटर मॉलिक्यूल्स आर मूविंग फ्रॉम आउटसाइड टू द सेल। सेल के बाहर से, साइटोप्लाज्म के बाहर से सेल वाटर जा रहे हैं इंटरसेल्यूलर स्पेसेस से, एंड दिस वाटर is restricted up to this region. वाटर मॉलिक्यूल इंडोडर्मिस के बाहर आकर के रुक जाते हैं। क्यों रुक जाते हैं इसका रीजन मैं आपको आगे बताता हूं। सो दिस पाथवे ऑफ द कॉर्टेक्स व्हेन वाटर इज मूविंग थ्रू द इंटरसेल्यूलर स्पेसेस इज कॉल्ड एज एपोप्लास्ट। ऊपर के जो एरोज में ड्रॉ किया हूं, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? एपोप्लास्ट। तो यहां पे हम पॉइंट मेंशन कर देते हैं। There are two types of movement of water. First one is apoplast.
So what happen in apoplast? Point number 1, water moves through intercellular spaces. Intercellular spaces means water is moving from outside of cell or water may cross the cell wall. क्रॉस द सेल वॉल का मतलब ये नहीं होगा कि ये सेल है तो वाटर सेल वॉल को क्रॉस करके अंदर आ गया, जी नहीं। मतलब ये होगा कि अगर ये सेल है तो वाटर सेल वॉल के ऊपर से जाएगा, लेकिन सेल वॉल को क्रॉस करके साइटोप्लाज्म में वाटर नहीं आ सकता है। तो यहां पर आप ध्यान से देख लीजिए, वाटर क्रॉस द सेल वॉल मींस कैन नॉट एंटर इन द साइटोप्लाज्म, बट वाटर कैन मूव above the cell wall. Okay, next thing. So this is a apoplast pathway which is taking place through the intercellular spaces outside the cell or by moving on the cell wall. Next thing, अब देखिए आप कि apoplast जो pathway है, यहां इंटरसेल्युलर स्पेसेस से वाटर जब जाएगा तो वाटर को रोकने वाली कोई चीज बीच में प्रेजेंट नहीं है, बिकॉज सेल्स आर लूजली अरेंज एंड दिस सेल वुड नॉट मेक एनी बैरियर फॉर द वाटर। बैरियर का मतलब होता है रुकावट। अगर वाटर इंटरसेल्युलर स्पेसेस से जाता है तो कोई रुकावट नहीं बनती है वाटर के सामने, इसलिए वाटर स्पीड में चले जाएगा। याद रखिए, वाटर स्पीड में मूव कर जाएगा मींस रेट ऑफ एब्सॉर्प्शन इज फास्टर। सेकंड थिंग, इंटरसेल्युलर गैप बहुत बड़े बड़े होते हैं, इसीलिए मास अमाउंट ऑफ वाटर इज ट्रांसपोर्टिंग, यानी वाटर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में ट्रेवल होगा। वाटर ही नहीं बल्कि वाटर में जो डिसॉल्व्ड सोल्यूट है वो सब मिक्सचर एक साथ मूव होगा। याद करिए आप, यस्टरडे कल के लेक्चर में अपन ने मास फ्लो के बारे में स्टडी किया था कि मास फ्लो विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज बल्क फ्लो, मूवमेंट ऑफ सॉल्यूशन टेक्स प्लेस बाय सेम पेस, एक ही स्पीड से सारे मॉलिक्यूल ट्रेवल कर जाएंगे। तो यहां पे नेक्स्ट पॉइंट हमको लिखना है कि इन एपोप्लास्ट पाथवे देयर इज नो एनी बैरियर फॉर वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर को कोई रोकने वाला नहीं है, इसीलिए वाटर कैसा फ्लो होगा बच्चों? मास फ्लो। वाटर इज मूविंग थ्रू द मास फ्लो विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज बल्क फ्लो। यानी ये पॉइंट जो है आपका, ये क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है कि बहुत सारा वाटर जाएगा डिसॉल्व्ड सोल्यूट के साथ में, और बहुत क्वांटिटी के साथ साथ स्पीड भी ज्यादा रहेगी, मींस रेट ऑफ एब्सॉर्प्शन इज वेरी फास्ट बिकॉज देयर इज एनी नो बैरियर फॉर द वाटर मॉलिक्यूल। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज एपोप्लास्ट पाथवे। और एक बात मैं आपको बताते चलूं कि एपोप्लास्ट पाथवे के लिए एक प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल होता है जो लीफ में होता है, और उस प्रोसेस का नाम है ट्रांसपीरेशन। असेंट ऑफ सैप में ये कंप्लीट डिटेल में हम स्टडी करेंगे कि हाउ ट्रांसपीरेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एपोप्लास्ट पाथवे। तो एपोप्लास्ट पाथवे की ये कंप्लीट पॉइंट आप बहुत अच्छे तरीके से याद रखिएगा, एक भी पॉइंट इसमें मिस नहीं करना है। एपोप्लास्ट पाथवे, water moves through the intercellular spaces, means water is moving from the gap between the cells outside of cell, or it may cross the cell wall but not enter in the cytoplasm. No barrier is present for restriction of water, so that water is moving at a faster rate and mass flow of the water is taking place. For apoplast pathway, transpiration is responsible. And next most important thing is, most of the water absorbed by the plant through the apoplast pathway only. So plant absorb maximum water. Maximum water absorption takes place by the process of apoplast. Okay, तो डायग्रामेटिकली क्वेश्चन आपको पूछ सकता है एग्जाम में, क्वेश्चन में डायग्राम आएगी, डायग्राम के अंदर एरोज आ सकते हैं, उसमें यह शो करेगा कि वाटर की मूवमेंट इंटरसेल्युलर स्पेसेस से हुई है।
तो अगर आपको ये सारे पॉइंट अच्छे से याद हो जाएं तो आप आंसर दे सकते हैं कि दिस एरो शो द एपोप्लास्ट पाथवे फॉर एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर. नाउ सेकंड टाइप ऑफ पाथवे फॉर एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर इज सिम्प्लास्ट. सिम्प्लास्ट को बच्चों मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, देखिए बोर्ड पर डायग्राम की तरफ. वाटर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन द सॉइल. फर्स्ट ऑफ ऑल water molecule enter in the root hair by the process of diffusion. Pathway of absorption चाहे एपोप्लास्ट हो या सिम्प्लास्ट हो, वाटर मॉलिक्यूल को पहले रूट हेयर में इंटर होना पड़ेगा डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू. तो यहां पर भी डिफ्यूजन प्रोसेस हुआ. अब देखिए वाटर किस तरह मूवमेंट परफॉर्म करता है. वाटर मॉलिक्यूल फर्स्ट इंटर इन द साइटोप्लाज्म ऑफ फर्स्ट सेल. वाटर किधर इंटर हो गया बच्चों? साइटोप्लाज्म में. फिर एक सेल से दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म में, फिर तीसरे सेल के साइटोप्लाज्म में, फिर चौथे सेल के साइटोप्लाज्म में. अब वाटर इस लास्ट सेल से बाहर निकलेगा, इंडोडर्मिस के बाहर आकर के रुक जाएगा. क्वेश्चन जो हमारे माइंड में जनरेट होता है कि सर क्यों सेल साइटोप्लाज्म टू साइटोप्लाज्म मूव कर जाता है? इसलिए मूव कर जाता है बच्चों क्योंकि ये जो पहला सेल है इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होता है. ऑस्मोटिक प्रेशर आप इसको कंसीडर कर सकते हैं कि वाटर को सक करने की कैपेसिटी, जिसे ओल्ड टर्म में डीपीडी यानी डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट भी कह सकते हैं. और सादी लैंग्वेज में सेल जो है इसमें सोल्यूट तो हैं पर सॉल्वेंट नहीं है, इसीलिए इस सेल को पानी की थ्रस्ट लग गई यानी पानी की प्यास लगी, तो फोर्सफुली साइटोप्लाज्म वाटर को अपने अंदर सक करेगा. तो वाटर सेल के अंदर इंटर हो गया, सेल के अंदर इंटर हो गया मतलब वाटर की वजह से सेल का टीपी बढ़ गया, टर्गर प्रेशर इंक्रीज हो गया, फ्री वाटर मॉलिक्यूल ऐड हो गए ना सेल में. तो ये जो फर्स्ट सेल है इसमें वाटर मॉलिक्यूल जब इंटर हो गए तो टर्गर प्रेशर बढ़ेगा. टर्गर प्रेशर बढ़ेगा तो सेल टर्जिड हो जाएगा, सेल में भरपूर पानी आ जाएगा. अब जो बाजू वाला सेल है उसमें सोल्यूट है पर सॉल्वेंट नहीं है, यानी बाजू वाले सेल के अंदर सक्शन प्रेशर है, ऑस्मोटिक प्रेशर है, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट है, यानी बाजू वाले सेल को पानी की बहुत थ्रस्ट लगी, प्यास लगी. अब ये बाजू वाला सेल पहले वाले सेल से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा. तो पहला वाला सेल खाली हो गया, फिर से एक तरफ से वाटर लिया और बाजू वाले सेल को वाटर दे दिया. तो फिर पहला सेल क्या करेगा? वापस रूट हेयर से वाटर एब्जॉर्ब करेगा. और रूट हेयर वाटर कहां से एब्जॉर्ब करेगी बच्चों? सॉइल से. तो यह सिलसिला कंटिन्यू होता जाएगा. जितने सेल पीछे पीछे रहेंगे सब में हायर ऑस्मोटिक प्रेशर रहेगा, हायर डीपीडी रहेगा, यानी सबको पानी की प्यास लगी. अब एक एक करके वाटर सेल के साइटोप्लाज्म में जा रहा है. अब इसका सेकंड सेल का टीपी बढ़ेगा तो थर्ड सेल का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है. फिर थर्ड सेल सेकंड सेल को बोलेगा कि भाई पानी मुझे दे दे, तू आगे वाले सेल से ले ले. तो इस तरह से ये वाटर की मूवमेंट चलती जाएगी. सो इन दिस मूवमेंट वाटर इज मूविंग इन साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल. That is intracellular process, and this process or this pathway is called as what? Symplast pathway. तो सिम्प्लास्ट के पॉइंट में यहां पे मेंशन करता हूं, सिम्प्लास्ट. ओके, सो व्हाट हैपन इन सिम्प्लास्ट पाथवे? दोनों को डिफरेंस अगर हम देखेंगे तो ज्यादा बेहतर है कि वाटर इज मूविंग थ्रू द इंट्रासेल्यूलर प्रोसेसेस. Intracellular means water entering in the cytoplasm by crossing the plasma membrane as well as cell wall. अगर वाटर को इस सेल के साइटोप्लाज्म में जाना है तो सेल वॉल भी क्रॉस करनी पड़ेगी और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी क्रॉस करनी पड़ेगी, तब जाके सेल आ जाएगा साइटोप्लाज्म के अंदर. ठीक. नेक्स्ट थिंग, अब देखिए वाटर जब साइटोप्लाज्म के अंदर पेनिट्रेट होता है, दाखिल होता है, तो आप लोग अंदाजा लगाइए. मैं आपको सवाल पूछता हूं, क्या वाटर को साइटोप्लाज्म में आने के लिए बैरियर्स हैं, रुकावटें हैं? तो आपका आंसर रहेगा यस.
देयर आर टू बैरियर, द फर्स्ट बैरियर इज सेल वॉल, वाटर को सेल वॉल से टकराकर अंदर आना पड़ेगा। सेकंड बैरियर इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अंदर आना पड़ेगा। तीसरा एक और बैरियर हो सकता है, अगर वाटर वैक्यूल में इंटर होना चाहता है तो वाटर को वैक्यूल की मेम्ब्रेन यानी टोनोप्लास्ट भी क्रॉस करनी पड़ेगी। तो वाटर वैक्यूल में किस तरह से आया? बाय क्रॉसिंग द सेल वॉल, बाय क्रॉसिंग द सेल मेम्ब्रेन एंड बाय क्रॉसिंग द टोनोप्लास्ट। अब वाटर बैठ गया वैक्यूल के अंदर जाके, टर्गर प्रेशर इंक्रीज हो गया, सेल कंप्लीटली टर्जिड हो गया। एडजेसेंट सेल ने बच्चों वाटर को एब्जॉर्ब किया, सक किया, तो ये वाटर पहले सेल से बाहर जब निकलेगा तो फिर से इसको तीन बैरियर क्रॉस करने पड़ेंगे। बाहर निकलने के लिए पहले टोनोप्लास्ट क्रॉस करनी पड़ेगी, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्रॉस करनी पड़ेगी, फिर सेल वॉल क्रॉस करनी पड़ेगी। सेकंड सेल में जाने के लिए फिर से ये तीन बैरियर को क्रॉस करके सेकंड सेल के वैक्यूल में वाटर को जाना पड़ेगा। मींस देयर आर बैरियर which restrict the water molecule. Barriers are present. So in apoplast pathway barriers are present which restrict the water. अब बैरियर प्रेजेंट होने की वजह से क्या होगा? वाटर मास फ्लो होगा या स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर फ्लो होगा? तो आप लोग जानते हैं कि रुकावट होने की वजह से, जैसे हम लोग बाइक चलाते हैं, रोड पर स्पीड ब्रेकर आ गया तो ब्रेकर आने के बाद में हमको अपनी स्पीड स्लो कर देनी पड़ती है। सेम इसी तरह वाटर को सेल में जाना है पर बैरियर्स आ गए, तो बैरियर की वजह से रेट ऑफ एब्सॉर्प्शन बिकम स्लो, रेट ऑफ एब्सॉर्प्शन बिकम स्लो एंड वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर इज एंटरिंग इन द साइटोप्लाज्म। तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि स्मॉल amount of water entering in the cell. So these are the comparison between apoplast and symplast. आप रजिस्टर पे पहले एपोप्लास्ट के पूरे पॉइंट लिख लीजिए, उसके बाद में आप अपने रजिस्टर पे सिम्प्लास्ट के पूरे पॉइंट लिख लीजिए, तब आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन सिम्प्लास्ट एंड एपोप्लास्ट। ओके, नाउ वी आर मूविंग फर्दर। For symplast, cytoplasm of the cell play an important role. ये symplast pathway एक्टिव एब्सॉर्प्शन के थ्रू भी हो सकती है और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू भी हो सकती है, एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इज सो कॉल्ड इज अ टाइप ऑफ पैसिव एब्सॉर्प्शन। ओके, तो एपोप्लास्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रांसपिरेशन और सिम्प्लास्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है सेल का खुद का अपना साइटोप्लाज्म, जो एनर्जी एक्सपेंस करके भी वाटर ले सकता है या अकॉर्डिंग टू कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मींस पैसिवली वाटर कैन एंटर इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। अब डायग्राम में मैं आपको मेंशन किया हूं स्टूडेंट कि वाटर चाहे ये पाथवे कौन सी हो गई? एपोप्लास्ट, और ये नीचे वाली पाथवे हो गई आपकी सिम्प्लास्ट। ओके, अब सवाल ये पैदा होता है कि पाथवे ऑफ वाटर ये सिर्फ कॉर्टिकल रीजन में होती है। सिम्प्लास्ट और एपोप्लास्ट आप सिर्फ कहां डिफाइन करेंगे? कॉर्टेक्स में। कॉर्टेक्स का जो इनरमोस्ट लेयर है यानी कि इंडोडर्मिस, वाटर मॉलिक्यूल इंडोडर्मिस के बाहर आकर के रुक गए हैं। अब वाटर मॉलिक्यूल इंडोडर्मिस को क्रॉस नहीं कर पाते, इसलिए क्रॉस नहीं कर पाते हैं क्योंकि इंडोडर्मिस के पास में जो सेल वॉल है वो सेल वॉल सुबेरिन नाम के मटेरियल से पैक है। ओके, तो सेल्स ऑफ इंडोडर्मिस आर कवर्ड बाय सुबेरिन। ये एक हाइड्रोफोबिक मटेरियल है बच्चों। सुबेरिन एक सब्सटेंस का नाम है, हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस का। इट इज अ वैक्स लाइक मटेरियल। सो सेल्स ऑफ इंडोडर्मिस आर कवर्ड बाय सुबेरिन एंड दिस कवरिंग ऑफ सुबेरिन is called as
कैस्पेरियन स्ट्रिप, कवर ऑफ सुबेरिन इज कॉल्ड एज कैस्पेरियन स्ट्रिप। अभी होता यह है कि ये मान लीजिए कि इंडोडर्मिस है, मैं इसके बाहर ड्रॉ करता हूं कैस्पेरियन स्ट्रिप। जरा ध्यान से देखें, ये जो पिंक कलर से मैं ड्रॉ कर रहा हूं, दिस इज द वैक्सी कोटिंग और वैक्सी कवरिंग अराउंड द endodermal cell, which is called as Casparian strip, and Casparian strip does not allow to transport the water because this Casparian strip is impervious to water. Impervious to water means ये कैस्पेरियन स्ट्रिप वाले जो सेल्स हैं ये वाटर को क्रॉस होने की परमिशन नहीं देंगे, लेकिन इंडोडर्मिस के सभी सेल कैस्पेरियन स्ट्रिप से कवर्ड नहीं है। इंडोडर्मिस के कुछ सेल ऐसे हैं जिन पर कैस्पेरियन स्ट्रिप का डिपोजिशन नहीं है, मतलब ये वाला सेल जिस पर मैंने कैस्पेरियन स्ट्रिप ड्रॉ नहीं किया हूं, दिस सेल इज विदाउट कैस्पेरियन स्ट्रिप, एंड द सेल ऑफ इंडोडर्मिस विदाउट कैस्पेरियन स्ट्रिप इज कॉल्ड एज पैसेज सेल। पैसेज सेल, पैसेज यानी पास करने वाला सेल। तो थ्रू दिस पैसेज सेल वाटर कैन इंटर अप टू द जाइलम। जरा ध्यान से देखिए, यहां तक वाटर कैसे आया है, इंटरसेल्यूलर स्पेसेस से, लेकिन इंडोडर्मिस को जब क्रॉस करने की बारी आएगी, इंडोडर्मिस को क्रॉस करने का जब वक्त आएगा, तो वाटर मॉलिक्यूल सेल को साइटोप्लाज्म से क्रॉस करके जाइलम के अंदर पेनिट्रेट होगा। तो इंडोडर्मिस के बाहर तक इंटरसेल्यूलर स्पेस से वाटर आया, लेकिन जब इंडोडर्मिस क्रॉस करने का वक्त आया तो वाटर को सेल के साइटोप्लाज्म से जाना पड़ा। दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसमेम्ब्रेन पाथवे और अल्सो कॉल्ड एज सिम्प्लास्ट पाथवे। तो एपोप्लास्ट सिर्फ कहां तक है, कॉर्टेक्स में। इंडोडर्मिस क्रॉस करने के लिए साइटोप्लाज्म से वाटर को जाना पड़ा, और जब आप सिम्प्लास्ट पाथवे देखते हैं तो वाटर ऑलरेडी साइटोप्लाज्म टू साइटोप्लाज्म आया है, इंडोडर्मिस के बाहर रुक गया है। अब कैस्पेरियन स्ट्रिप वाटर को क्रॉस होने की परमिशन नहीं देगी, इसीलिए वाटर मॉलिक्यूल को फिर से पैसेज सेल के साइटोप्लाज्म से ही जाना पड़ेगा। यानी पाथवे ऑफ वाटर एब्सॉर्प्शन चाहे एपोप्लास्ट हो या सिम्प्लास्ट हो, इंडोडर्मिस क्रॉस करने के लिए सेल के साइटोप्लाज्म से ही वाटर को गुजरना पड़ेगा जाइलम तक। समझ रहे? तो कॉर्टेक्स ही डिसाइड करता है कि आपके वाटर का जो पाथवे है वो सिम्प्लास्ट है या एपोप्लास्ट है। अगर कॉर्टेक्स इंटरसेल्यूलर स्पेसेस से वाटर क्रॉस करेगा तो एपोप्लास्ट, साइटोप्लाज्म टू साइटोप्लाज्म करेगा तो सिम्प्लास्ट। ओके, तो सिम्प्लास्ट में बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर ट्रैवल कर जाता है, एपोप्लास्ट में ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर ट्रैवल करता है। एपोप्लास्ट मास फ्लो ऑफ वाटर and rate of absorption is also faster. Simplast very small amount of water and rate of absorption is also very slow. तो finally water कहां तक पहुंच गया बच्चों, जाइलम के सेंटर तक के। तो these are the two pathway for absorption of the water. अभी देखिए नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर जाते हैं, जब तक आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिनिश? ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड कंटिन्यू करते हैं। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें रूट स्पेशल सिस्टम तैयार करती है ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर को एब्सॉर्ब करने के लिए, एंड दैट सिस्टम इज कॉल्ड एज माइकोराइजा। देखिए, माइको का मतलब होता है फंजाई, ओके, एंड राइजा का मतलब होता है रूट। Primary taproot, specifically region of maturation. So let us consider this is the structure of primary taproot. Morphologically, on the region of maturation, many fungal hyphae are wounded on it. फंजाई जो होता है बच्चों, ये फंजाई का बॉडी इस तरह थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से बना हुआ होता है। ये जो सिंगल थ्रेड है, इस सिंगल थ्रेड को कहते हैं हाइफी, ओके, और सभी थ्रेड मिलकर के
फंजाई का बॉडी बन जाता है। सभी थ्रेड को मिलाकर के आप नाम दे सकते हैं माइसेलियम। ओके, तो फंजाई की जो हाइफीज है वो रूट को कंप्लीटली वाउंड हो गई, मतलब रूट पर लपेटी चली गई, रूट को सराउंड कर ली और कुछ हाइफीज सॉइल के अंदर दूर तक के पेनिट्रेट हो गई। अब यहां पर कोई मिनरल्स हैं या यहां पर वाटर मॉलिक्यूल्स है, तो फंजाई की हाइफी एक ट्यूब होती है, जैसा हमको स्लाइन लगता है, स्लाइन की जैसी ट्यूब होती है, वैसी हॉलो ट्यूब होती है फंजाई की हाइफी। तो ये ट्यूब वेरी डिस्टेंटली पार्ट तक जाती है और वहां से खास मिनरल वाटर मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब करके लेकर आती है और रूट को सप्लाई करती है। तो माइकोराइजा की वजह से होगा क्या? पॉइंट नंबर 1 कि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ माइकोराइजा सरफेस एरिया ऑफ रूट फॉर एब्सॉर्प्शन इंक्रीजेस। वाटर का जो रूट का जो सरफेस एरिया है जो एब्जॉर्प्शन के काम में आएगा, वो सरफेस एरिया बढ़ चुका है, इंक्रीज हो चुका है। नंबर 2, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस फंजाई रूट कैन एब्जॉर्ब, और फंजाई प्रोवाइड मिनरल्स एंड वाटर इनटू द रूट, क्योंकि फंजाई की जो कुछ हाइफी है वह रूट के अंदर तक पेनिट्रेट हो चुकी है, तो दूर से वाटर खींचकर लाएगी ट्यूब और ट्यूब के थ्रू कॉर्टेक्स तक या डायरेक्टली जाइलम तक के वो स्पेसिफिक मिनरल्स और वाटर मॉलिक्यूल पहुंच सकते हैं। सो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइकोराइजा। अब माइकोराइजा इज आल्सो कॉल्ड एज symbiotic association between fungi and root. Symbiotic association. So what is symbiotic association? The association between two or more members in which all the member get benefited from each other. हमारे पास में यहाँ पे symbiotic association के लिए 2 मेंबर्स है, एक है रूट और दूसरा है फंजाई। दोनों को एक दूसरे से बेनिफिट होना जरूरी है, तभी जाकर आप इन दोनों के एसोसिएशन को सिम्बायोटिक एसोसिएशन कह सकते हैं। अभी फिलहाल रूट को तो बेनिफिट हो चुका है। कैसे बेनिफिट हो गया? हमने देखा कि फंजाई ने दूर से मिनरल और वाटर लाकर रूट को प्रोवाइड कर दिए। अब फंजाई को क्या बेनिफिट है? फंजाई को यह बेनिफिट मिलेगा कि रूट रिटर्न्स में फंजाई को प्रोवाइड करेगी शुगर सब्सटेंस, sugar and nitrogenous compound which are very necessary for growth of fungi. फंजाई की ग्रोथ के लिए शुगर और नाइट्रोजिनस कंपाउंड जरूरी होते हैं, एंड दिस सब्सटेंसेस आर प्रोवाइडेड बाय रूट टू फंजाई। तो देखिए फंजाई को भी बेनिफिट मिल गया रूट से, फंजाई को शुगर मिल गई, फंजाई को नाइट्रोजिनस कंपाउंड मिल गया, और रूट को भी बेनिफिट पहले हो गया था, रूट को मिनरल्स मिल गए, वाटर मिल गया, सरफेस एरिया ऑफ द रूट इंक्रीज हो गया, एब्सॉर्प्शन कैपेसिटी बढ़ गई। तो दिस इज कॉल्ड एज सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन फंजाई एंड रूट ऑफ हायर प्लांट विच इज कॉल्ड एज सिम्बायोटिक एसोसिएशन। सेकंड थिंग जो आपको एनसीईआरटी बुक में दी हुई है कि अगर पाइनस सीड को जर्मिनेट होना है तो पाइनस सीड necessarily require the presence of fungi for its germination. ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से याद करने, एग्जाम में पूछ सकते हैं कि भाई कौन से प्लांट का सीड बगैर फंजाई के जर्मिनेट नहीं हो सकता, तो आपको नाम याद रखना है पाइनस। पाइनस इज अ मेंबर ऑफ जिम्नोस्पर्म। ओके, तो पाइनस सीड could not be germinate without fungi. Means fungi is necessary for germination of the pinus seed. Okay, so this is all about the pathway of absorption. कुछ मेन पॉइंट हाईलाइट कर देता हूं मैं। प्लांट जो टॉल ट्री है वो मेनली कौन से पाथवे से वाटर एब्जॉर्ब करेगा? एपोप्लास्ट से। करेक्ट आंसर, क्योंकि एपोप्लास्ट मास फ्लो में वाटर एब्जॉर्ब करता है और फास्टर रेट से एब्जॉर्ब करता है। एपोप्लास्ट के पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? ट्रांसपिरेशन रिस्पॉन्सिबल होता है।
एपोप्लास्ट मूवमेंट इंटरसेल्यूलर स्पेसेस से होती है। एपोप्लास्ट मूवमेंट को रोकने वाला कोई बैरियर नहीं होता है, ठीक है। लेकिन सिम्प्लास्ट मूवमेंट भी होती है। स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर इज इंटरिंग इन द cytoplasm to cytoplasm. It is living movement and apoplast is a death movement. Rate of absorption is very slow through the symplast and water is entering in very small amount. For symplast, which component is responsible? Osmotic pressure of the cell is responsible for absorption of water through the symplast. Okay, चलिए ये टॉपिक यहां पर अपना फिनिश हुआ। अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करेंगे कंडक्शन ऑफ वाटर up to the topmost height, that is called as ascent of sap or translocation of water. Okay, so next topic is translocation of water. देखिए ट्रांस मीन्स ट्रांसफर होना, एक जगह से दूसरी जगह जाना। लोकेशन मीन्स प्लेस ऑफ वाटर। तो वाटर जब एब्जॉर्ब हुआ तो फाइनली कहां पर पहुंचा? जाइलम वेसल्स में। ये जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है दिस इज कॉल्ड एज एब्सॉर्प्शन। अब जाइलम वेसल में पहुंचने के बाद वेसल इस वाटर को बच्चों ऊपर लेकर जाएगा। इट इज कॉल्ड एज कंडक्शन ऑफ वाटर। कंडक्शन इज आल्सो कॉल्ड एज ट्रांसलोकेशन। एंड टू एक्सप्लेन हाउ वाटर इज ट्रांसलोकेटेड इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, द नंबर ऑफ theories has been explained. All these theories are collectively known as ascent of sap. एसेंट का मतलब होता है ऊंचाई और सैप का मतलब क्या होता है? वाटर इन विच सोल्यूट्स आर डिजॉल्व्ड। सो वाटर प्लस सोल्यूट। सोल्यूट मीन्स इनऑर्गेनिक मिनरल्स लाइक कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, सल्फर एंड सो ऑन। तो सैप ऊपर किस तरह से चढ़ता है ये एक्सप्लेन करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट टास्क साइंटिस्ट लोगों के लिए था। क्यों? क्योंकि वाटर को ऊपर जाने के लिए ग्रेविटी के अगेंस्ट में काम करना है। वाटर को ऊपर चढ़ने के लिए कोई ऐसी मोटर या कोई ऐसा आर्टिफिशियल पंप प्लांट में लगा हुआ नहीं है कि भाई एकदम ऊपर एक मोटर लगी वो वाटर को खींच रही है तो वाटर ऊपर जा रहा है। एक नेचुरल प्रोसेस लीव्स में होता है जिसे ट्रांसपिरेशन कहते हैं। वो जरूर एक मोटर मानी जाएगी कि जिसकी वजह से वाटर ऊपर पुल होता है। लेकिन साइंटिस्ट लोगों को उस जमाने में इतनी ज्यादा जानकारी नहीं थी, इतने ज्यादा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं हो पाए थे, इतने ज्यादा वेल डेवलप्ड इंस्ट्रूमेंट नहीं थे, इसीलिए सभी ने अपनी अपनी थ्योरी प्रपोज की। एसेंट ऑफ सैप को एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहली एंड ओल्डेस्ट थ्योरी हुआ करती थी बच्चों वाइटल फोर्स थ्योरी। इस वाइटल फोर्स थ्योरी के अंदर दो मेन थ्योरीज आती है। एक का नाम है रिलाय पंप थ्योरी और रिले पंप थ्योरी। दिस रिले पंप थ्योरी was proposed by the scientist गॉडलेविस स्काई। आपको थ्योरी का नाम याद रखना है, उस पर्सन का नाम याद रखना है जिसने प्रोपोज किया। तो गॉडलेविस स्काई प्रोपोज दिस रिले पंप थ्योरी in 1884 and according to Godlewis Sky, rhythmic movement is occurring in the cortical cell or in the living cell of the xylem parenchyma। देखिए दो सेल्स का नाम लिया जा रहा है, कॉर्टिकल सेल्स एंड जाइलेम। देखिए एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर में हमने देखा था कि जाइलेम जो होता है वो चार अलग अलग सेल के कॉम्बिनेशन से बना हुआ होता है। जाइलेम पैरेनकाइमा, ट्रकीट, वेसल्स, फाइबर, इन चारों में लिविंग सेल सिर्फ एक ही है, जाइलेम पैरेनकाइमा। तो जाइलेम पैरेनकाइमा में रिदमिक मूवमेंट हो रही है और कॉर्टिकल सेल में रिदमिक मूवमेंट हो रही है, यानी पल्स की तरह। तो गॉडलेविस स्काई का कहना यह है कि व्हेन
rhythmic movement are occurring. Rhythmic movement in cortical cells and in the living cell of xylem, that is in xylem parenchyma. So due to the rhythmic movement in these two type of cells, that is cortical cell and xylem parenchyma, water moves up in the plant. Water moves up into the plant. That is, ascent of sap is taking place due to rhythmic movement in cortical cell as well as xylem parenchyma. लेकिन गॉडलेविस्काय का ये कंसेप्ट क्रिटिसाइज हो गया, बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों ने इसको फेल करार दे दिए, और फिर इसके बाद में वाइटल फोर्स थ्योरी का सेकंड पार्ट पब्लिश किया जेसी बोस साहब ने, जो कि इंडियन साइंटिस्ट थे, और इन्होंने सबसे पहले पता लगाया कि प्लांट जो होते हैं उनको भी दर्द महसूस होता है. प्लांट लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं. अगर हम पैदल चलते हैं गार्डन में तो हम हमारे पैरों से कई ग्रासेस को कुचल देते हैं. कई लोग जानबूझ के दरख्तों को कट कर देते हैं, प्लांट्स को निकाल के फेंक देते हैं, जिसकी वजह से उनकी डेथ होती है. हम लोगों को अगर कोई तकलीफ हुई, दर्द हुआ, तो हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन प्लांट एक्सप्रेस नहीं कर पाता. तो जेसी बोस साहब ने सबसे पहले यह बताया कि रिदमेटिक मूवमेंट कॉर्टिकल सेल्स या जाइलम पैरेन्काइमा में नहीं होगी, बल्कि रिदमेटिक मूवमेंट इंडोडर्मिस के बाहर जो कॉर्टिकल सेल्स है सिर्फ उनमें होगी. एंड दैट कॉर्टिकल सेल आर रिस्पॉन्सिबल टू कंडक्ट द वाटर. सो जेसी बोस का जो कॉन्सेप्ट था वो ये था कि रिदमेटिक मूवमेंट occur or takes place in the cortical cells which are present just outside the endodermis, and this rhythmic movement is responsible to move the water in vertically upward direction. जेसी बोस साहब ने गैल्वेनोमीटर का भी यूज किया था. उन्होंने गैल्वेनोमीटर का जो नीडल होता है, सुई होता है, वो स्टेम से पेनिट्रेट किया था इंडोडर्मिस के बाहर के सेल तक, और फिर उन्होंने देखा कि गैल्वेनोमीटर का जो कांटा है, जो नीडल है, वो बार बार डिफ्लेक्शन शो कर रहे रिदमेटिक मूवमेंट की वजह से. एंड दिस रिदमेटिक मूवमेंट्स आर ऑकर ड्यू टू द फ्लक्चुएशन इन ओपी, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर. तो दोनों थ्योरीज में एक कॉमन पॉइंट ये है कि रिदमेटिक मूवमेंट सेल में होती है, रिदमेटिक मूवमेंट होती है ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से. लेकिन दोनों थ्योरीज में डिफरेंस ये है कि गॉडलेविस्काय साहब ने कहा कि रिदमेटिक मूवमेंट कॉर्टिकल सेल और जाइलम पैरेन्काइमा में होती है, लेकिन जेसी बोस साहब ने क्या कहा कि रिदमेटिक मूवमेंट इंडोडर्मिस के जस्ट बाहर के कॉर्टिकल सेल में पाई जाती है. लेकिन जेसी बोस साहब की थ्योरी को भी क्रिटिसाइज कर दिया गया और वो थ्योरी फेल हो गई. इसके बाद में नेक्स्ट थ्योरी आई जो हमको सिलेबस में दी हुई है. द नेम ऑफ थ्योरी इज रूट प्रेशर थ्योरी, और इसके बाद में हमको दिया हुआ है ट्रांसप्रेशन पुल थ्योरी और कोहेजन टेंशन थ्योरी. तो रूट प्रेशर थ्योरी काफी बड़ा एक्सप्लेनेशन है. ट्रांसप्रेशन पुल थ्योरी जो डिक्सन एंड जोले साहब ने पेश किए थे, ट्रांसप्रेशन पुल थ्योरी में भी लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन है. अभी हमारे पास में वक्त नहीं है, इसीलिए नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि अभी टाइम दूसरे लेक्चर का होने जा रहा है, तो हम कल के लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में ये दोनों थ्योरी को बहुत आराम से, इत्मीनान से, हर पॉइंट इसके क्लियर करके एक्सप्लेनेशन इसका देखेंगे. ओके, थैंक यू वेरी मच. Mike, okay.